Hello and welcome to Suffer IS. We are going to solve GMI RCA entrance paper 2021. Let's start. I have section B. Section B starts with CSET. What I am thinking that we will do the CSET later. Let's first complete GSP. Which of the following body approves FRP of sugarcane? Cabinet Committee on Economic Affairs. Commission for Agricultural Cost and Prices को भी देखते हैं. ये MSP को अप्रूव करता है. Directorate of Marketing Inspection, Ministry of Agriculture sets the standard for agricultural products such as Agmark. Agriculture Produce Market Committee develops an efficient marketing system for wholesale of agricultural produce. Consider the following statement about small finance bank. These are the Nikkei banks with the main function to perform lending activities among weaker sections. ये statement ठीक है. These are the scaled down version of banks with both deposit taking and loan making function. This statement is also correct. These banks are based on the पार्थ Committee on Financial Inclusion. ये statement गलत है क्योंकि पार्थ नहीं है, यहाँ पे थे नचिकेत मोर on Financial Inclusion. 3 रॉन्ग हो जाएगा, 1 and 2 is correct. क्वेश्चन 13 में पूछा गया है टी grows best in Assam, Darjeeling and Jalpaiguri district of West Bengal. What is are the uniqueness of this region that suits this crop? It has a warm and humid climate. That's correct. Showers are mainly concentrated in 4-5 months. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टी के लिए थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म रेंज चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. 1-3 दोनों में है. फोर्थ पढ़ते हैं. रफ टोपोग्राफी नहीं चाहिए होता है, प्लेन चाहिए होता है. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट्स बी. नेक्स्ट देखते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन है 14. नवल शिप्स और उनकी क्लास के बारे में बतानी है. आईएनएस विक्रमादित्य ये एयरक्राफ्ट कैरियर, मुझे ये पता है. आईएनएस कलवरी ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन. फोर्थ का बी हो जाएगा. ठीक है. Next, consider the following statements regarding food fortification. It is the addition of key vitamin and minerals to staple food. ये ठीक है. It is aimed at fighting malnutrition. ये भी ठीक है. Both of them are correct. देखिए, food fortification से related एक और term आता है bio fortification. Food fortification और bio fortification में slightly difference है. या फिर साल्ट ले लीजिए. साल्ट में आप आयोडीन मिलाते हैं तो डेट इज फूड फोर्टिफिकेशन. या फिर जो एडिबल ऑयल होते हैं उसमें विटामिन ए मिलाया जाता है. बायो फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल में गोल्डन राइस. फूड फोर्टिफिकेशन हार्वेस्टिंग के बाद किया जाता है. बायो फोर्टिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एट द स्टेज ऑफ प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप. Let's move on. The most significant player in the implementing a public policy, legislature to make law, कोर्ट्स इंटरप्रेट्स द लॉ. प्रेशर ग्रुप एनजीओ के एग्जांपल है इनका. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, किसान यूनियन हो गए. ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट्स लॉ. हु गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जॉन लॉक ने दिया था. चलो साथ के साथ ये भी देखते हैं कि हॉब्स ने क्या दिया था. हॉब्स ने एक बुक लिखी थी लेवियंथन. रोशियो रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप इथिक्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको ये मिलेगा. थॉमस जेफरसन वाज अमेरिकन फाउंडिंग फादर एंड प्रिंसिपल ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statements are true regarding force majeure? Force majeure is a French term that means greater force. It includes an act of God or natural disaster or warlike situation, epidemics, pandemic, etc. I mean, ठीक है. Unforeseeable circumstances that prevent someone from fulfilling a contract. Statement 2 भी ठीक है. When these condition prevails, force majeure is applicable and not treated as breach of contract. B इसका आंसर हो जाएगा. Next. Consider the following statements regarding Champions Portal. करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उतना रिलेवेंट नहीं है. इट इज अ टेक्नोलॉजी पैक्ड कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये स्टेटमेंट ठीक है. लॉन्च बाय एमएचआरडी. नो, ये एमएसएमई ने लॉन्च किया था. ठीक है, तो 1 ओनली हो जाएगा. 19th का. When an individual quits his job and decided to stay at home for a while, labor force participation rate decreases. ठीक है, क्योंकि लेबर है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रही. एक टर्म होता है इससे रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है यहाँ पे तो वो रिमेन्स अनचेंज रहता. नाउ मूव ऑन 21. विद रेफरेंस टू करेंसी स्वैप फैसिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसी विद प्री डिटर्मिन्ड टर्म्स. ये स्टेटमेंट ठीक है. द स्वैप ऑपरेशन कैन कैरी एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क. क्योंकि ये पहले प्री डिटर्मिन्ड टर्म पे फिक्स है तो अब मार्केट रेट से इससे मतलब ही नहीं है. मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट करे उस पर डिपेंड नहीं करता. ये आपको पता चल जाएगा कि 1 और 2 एक साथ नहीं जाएंगे, तो जहां भी 1 और 2 एक साथ है उसे काट दो. अगर ये आपको पता है तो आपको पता चल गया कि 1 यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मदर फंड और फंड ऑफ फंड्स अंडर स्कीम आत्मनिर्भर भारत. अगेन इट्स करंट फेयर बेस्ड क्वेश्चन, नॉट रिलेवेंट फॉर दिस ईयर. इट विल हेल्प इन लिस्टिंग ऑफ एमएसएमई ऑन कैपिटल मार्केट. इसका एक पर्पज है प्रमोट एमएसएमई
to be listed on capital market. Government of India will purchase majority of ownership in MSME. ये गलत है, वन ओनली हो जाएगा. Move on to 23rd. Which of the following statements regarding yoga is not correct? Yam in yoga means restraining herself himself from immoral activities. ये statement ठीक है. धरना is concerned with concentration. ये भी ठीक है. Pratyahara is concerned with withdrawal of senses. Samadhi is observance which refer to cultivation of value and virtue in life. ये गलत. Ashtang yoga भाई पतंजलि आपने पढ़ा होगा तो आप इसको कर देंगे. 24th देखते हैं. The concept of citizenship involves the concept of equality of right and status is one of the basic rights of citizenship. 25th में पूछा गया है which act provided right to vote to women. Government of India Act 1919 इसको Montfort रिफॉर्म भी कहते हैं. इसमें एक पॉइंट नोट करने की है कि franchise was given to some limited people based on property, tax, education. But एक इसमें important point ये थी women's were also given the right to vote. Important question है 26. Consider the following statements regarding air pollution. Ground ozone is an example of secondary pollutant. एक होता है primary pollutant और एक होता है secondary pollutant. Primary pollutant होता है जो डायरेक्ट रिलीज हो, जैसे गाड़ी के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो डेट इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट. ठीक है. बट ओजोन ऐसा नहीं है. ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड बट फॉर्म्स व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स react with atmosphere or सन एक्सेट्रा. ग्राउंड ओजोन इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ये हो गया. अब यहाँ पे देखो आपका पता चल गया वन ठीक है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो. ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट बैडली अफेक्ट्स द ह्यूमन लंग्स. ये भी ठीक है और टू तो सब में ही है वैसे भी. ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग विंटर. ये स्टेटमेंट गलत है. अभी मैं आपको बताऊंगा. चौथा देखते हैं पहले. ग्राउंड ओजोन इज ऑल्सो कोल्ड फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट. ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि फोटो यानी लाइट, बिकॉज ऑफ द लाइट ग्राउंड ओजोन constitutes one of the major components of photochemical smog. जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा ये उतने ज़्यादा रिएक्शन बढ़ता है, उतना ज़्यादा ग्राउंड ओजोन बनता है. तो इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है. एंड ओजोन कंसंट्रेशन गर्मी में ज़्यादा होगी क्योंकि लाइट ज़्यादा गर्मी में रहती है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. 3 इज रॉन्ग है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. 1 2 4 करेक्ट है. सी इसका आंसर हो जाएगा. 27 देखते हैं. Consider the following statement. Climate change is forcing monsoon behavior by decreasing the number of rainy days in India during southwest monsoon as per recent findings of IPCC report. ये statement ठीक है. El Nino phenomena disturb the weather of tropical region and temperate region. Both of them are correct. 28वां क्वेश्चन देखते हैं. These are one of the most vulnerable and ecological sensitive regions of the world. ये statement ठीक है. Its height is no longer increasing as there is no Tethys Sea. ये statement गलत है क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है जिससे कि हाइट हिमालय की बढ़ती जा रही है. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये दोनों तो आपके गए. अब आपको पता चल गया कि बी या सी में से कोई होगा. ठीक है, और इसमें आप देखो दोनों में ही 4 है. दिस स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट. It now all depend on the statement 3. There is no volcanic eruption despite being at destructive boundary. This statement is also correct. 29 देखते हैं. Which of these conditions are favorable for southwest monsoon? अब इसमें देखिए फर्स्ट वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक. नेक्स्ट कोल्ड टिबेटन प्लेटू सर्फ. ये जो मॉनसून वाइंड्स होती हैं वो इंडिया में तभी आती जब यहाँ मडगास्कर के पास मैस्क्रीन हाई से कहते हैं हाई प्रेशर होता है और टिबेटन प्लेट्यू ये जो स्टेटमेंट 2 है वहाँ पे लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर तब होता है जब गर्मी खूब पड़ती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कोल्ड तो इसलिए ये गलत हो जाएगा. अब आप जैसे ही पता चला आपका स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो सारे खत्म. 29 का ए. क्वेश्चन 30 देखते हैं. विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट. इबोला आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज में था तो ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, तो 1 इज करेक्ट. हाँ ओके 1 तो वैसे भी सब में करेक्ट ही है. जीका वायरस इंडिया में फेमस है. स्पेनिश फ्लू देखो यार स्पेन एंड सराउंडिंग एरिया, तो 3 इनकरेक्ट है. 3 इनकरेक्ट है तो ये गया. स्वाइन फ्लू था मैक्सिको और यूएसए, ये ठीक है. सो 30 का बी करेक्ट है. 31 इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग स्टेट यूटीज एंड देयर पार्ट्स. दो शेयर बाउंड्री विद ईच अदर. इसके लिए हम एक मैप देखते हैं. दमन जो है वो मुंबई के कोस्ट के पास गुजरात में पड़ता है. तो ये दोनों शेयर बाउंड्री शेयर तो नहीं करते हैं, वन बाउंड्री शेयर नहीं करते. उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ एक छोटे से पॉइंट सहारनपुर के पास बाउंड्री शेयर करते हैं. थ्री इज करेक्ट. उड़ीसा और तेलंगाना नहीं करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बच जाता है, ये भी नहीं होगा. इसका आंसर सी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्री विद ईच अदर. इस क्वेश्चन को भी हम एक मैप के थ्रू देखते हैं. तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान नहीं शेयर करते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33.
विच ऑफ दीज आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड फ्लड? सो रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण आप जहाँ भी अर्बन सिटी हैं तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है। तो वैसे भी सारे ऑप्शन में वन है। डिफोरेस्टेशन से भी ट्री जो होते हैं वो फ्लड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो टू भी होगा। हैवी सैंड माइनिंग करने से वाटर रिचार्ज कैपेसिटी कम हो जाता है, तो थ्री भी होगा। माइक्रो इरिगेशन से डिप्लीशन नहीं होता है बल्कि फायदा होता है, पानी कम वेस्ट होता है, तो फोर वहां पे नहीं होगा, वन टू थ्री हो जाएगा। 34 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ चाइना, विच ऑफ दिस शेयर बाउंड्री विद जम्मू कश्मीर? सो आप इस मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, तब से जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्ट चाइना से टच नहीं करता है, लेकिन लद्दाख से दोनों ही टच करते हैं। नाइदर हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ अफ्रीका इज नियरेस्ट टू इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा सीसेल्स। मूविंग ऑन टू 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है हिंदू कोस्ट हिमालयन रीजन इज कॉल्ड एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू हार्ड रॉक्स हैव लेसर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी देन ग्रेट इंडियन प्लेन। ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू में इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ इधर देखा होगा कि इधर बहुत सारे कुएं बनाए जाते हैं। ठीक है, वो उसका रीजन यही है क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी कम है वहाँ पे। कोरल इज फाउंड इन बोथ अंडमान निकोबार एंड ये तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा कि अगर आपको वन टू पता चल गया कि सही है, तो फोर यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रू होना ही होना है। डिपेंड ऑल ऑन थ्री। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर ओनली एक्सपीरियंस इन विंटर सीजन ओवर नॉर्थ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी भी हो सकता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। तो 37 का क्वेश्चन है, यहाँ ट्रीज दे रखे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप दे रखा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। 38 का देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन कोड। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन पोलर ऑर्बिट। यहाँ पे पोलर ऑर्बिट दिया गया है, जबकि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, दैट इज एट 35,786 किलोमीटर अबव इक्वेटर। इक्वेटर। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वन इज रॉन्ग, तो ये दोनों गए। अब देखते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिमोट सेंसिंग इज द एक्वायरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टेंस जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये काफी दूर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऑल थिंग्स ऑन अर्थ रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ विच वेरीज बाई वेवलेंथ। For example, snow has very high albedo and reflect up to 90% of the incoming solar radiation. And if you see the ocean, it reflects only 6% of incoming solar radiation. ठीक है, तो this way remote sensing works. It sends the data based on the reflected electromagnetic radiation or wave. ठीक है, तो टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 इज अबाउट द कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर्ड बाय यूजिंग ए लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प इनटू कोल रॉक्स और ओशन वाटर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है। इट इज एम्प्लॉयड इन सुपर सर्ट प्रोग्राम टू ऑथेंटिकेट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये स्टेटमेंट ठीक था। वंस एन इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू ब्लॉक इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये गलत है। इट कैन बी अल्टर्ड बट it is difficult to alter, but it can be altered. Okay, altering any piece of information would require overriding the entire blockchain network, which consists of many devices. So this work is difficult, but this can be done. That's why this statement is incorrect. Blockchain technology is the basis of cryptocurrencies like Ripple and NXT. This statement is also correct. So 1 and 3 are correct, B should be answer. Moving on to 41. The Asia African Growth Corridor is about promoting quality infrastructure. That's correct. Connectivity within Asia and Africa. That is also correct. Promoting defense collaboration. Third statement is not correct. So अगर किसी को third statement पता होता कि it is not about promoting defense collaboration, तो अपने ये सारे statement अपने आप ही ये तीनों गलत हो जाते और ये ठीक हो जाता। ठीक है। With reference to BT cotton, incorrect बताना है। BT cotton is pest resistant and herbicide tolerant। ये स्टेटमेंट ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय इन इंडिया बाय मोनसेंटो माइको बायोटेक। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इंकरेक्ट कौन सा है? स्टेटमेंट बी इंकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि
It offers pest resistant against only bollworms and white fly pest नहीं होना चाहिए यहाँ, पिंक वर्म होना चाहिए। तो 42 का बी हो गया। मूविंग ऑन। फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई मिसाइल फिटेड इन रफाल। तो इसमें से अगर किसी को ये पता होगा कि आराम इज मेड बाय यूएसए, ठीक है, तो वो 2 को एलिमिनेट कर देगा और आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों मीटियोर, हैमर एंड एक्जोसेट आर मिसाइल मेड बाय फ्रांस। रफाल भी फ्रांस से इंडिया ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर ए लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया। लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इनकम कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगता है। ए वैरायटी ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, हाँ बहुत लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो दूसरा भी है उसका कारण लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैश इकोनॉमी भी इसका रीजन है। हाई अमाउंट ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी से इसे कोई लेना देना नहीं है। 1 2 एंड 3 है। क्वेश्चन 45 में पीएम किसान के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है वो बताना है। कवर्स ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस फार्मर्स एंड शेयरहोल्डर। देखो ये लैंडलेस फार्मर्स के लिए नहीं है, ये लैंड होल्डर्स के लिए। all land holding farmers irrespective of the size of their land holdings, सबको 6,000 रुपए दिए जाएंगे पर ईयर, ठीक है। तो वन इनकरेक्ट हो जाएगा, जैसे ही वन इनकरेक्ट होगा आपको आंसर पता चल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो स्टैंड अप इंडिया फाइनेंस टू एस सी एस टी, ये सही है। इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्टर फैसिलिटेशन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड फिक्की, ये भी ठीक है। स्टार्टअप इंडिया फाइनेंस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये नहीं है। स्टार्टअप इंडिया 75 स्टार्टअप हब्स बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये गलत है। मूविंग ऑन टू 47। 47 विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन एफडीआई, इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन फर्म टू एस्टेब्लिश ए सब्सिडरी, ये एफडीआई के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ये पता है क्या है, ये एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर सो टू इज इनकरेक्ट, वन ओनली इसका आंसर है। मूविंग ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बॉन्ड्स। नॉट करेक्ट पूछा गया है बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, यस, बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, कर्ज लेने के लिए है। बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, ये भी ठीक है। एक बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स और जो बॉन्ड इशुअर्स आर डेटर्स, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स हैव मैनेजमेंट राइट ऑफ द कंपनी, ये गलत है, ये तो गलत। बॉन्ड होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द इशूर वर्क इक्विटी होल्डर्स, ये भी सही है। तो इसका 48 का सी हो गया। मूविंग ऑन। 49 फिस्कल कंसोलिडेशन is one of the objectives of India's economic policy. Which of the following would help in fiscal consolidation? Fiscal consolidation का सीधा सबका मतलब समझ लो। Fiscal consolidation means decreasing fiscal deficit, ठीक है, over a period of time. So if you increase the taxes, yes, your income of the government will increase and fiscal consolidation will be there. If you getting more loans, अगर fiscal consolidation का वो उल्टा काम करता है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपने ये लोन जो है हम उसको एक्सपेंडिचर की तरह ले लेते हैं, आपने किससे उधार लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको चुकाना भी पड़ेगा, तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन में नहीं आता। तो टू इज नॉट देयर, अगर टू इज नॉट देयर तो बी इज द आंसर, ठीक है। रिड्यूसिंग सब्सिडीज, हाँ सब्सिडीज आप कम करते हो, जैसे कि अगर कम लोगों को आप सब्सिडीज देते हैं फार्मर को, ठीक है, तो अपने आप आपका इनकम बढ़ जाता है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन हो जाता है। मूविंग ऑन तो 50। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर काफी इजी है। शेयर मार्केट में सर्किट ब्रेकर प्राइस को क्रैश होने से बचाने के लिए होता है। व्हेन द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर स्टॉक राइज और फॉल बाय स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, 10%, 15% और 20%, इतने का अगर किसी स्टॉक में राइज या फॉल आ गया तो उस दिन सर्किट ब्रेकर हो जाता है। 51 में फॉल्स स्टेटमेंट बताना है आपको।
ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ गिवन बास्केट कमोडिटी दैट आर ब्रॉट बाय रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, ये ठीक है। द वेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गुड्स आर कांस्टेंट इन जीडीपी डिफ्लेटर बट दे डिफर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन सीपीए, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। थर्ड ये भी देख लेते हैं। द इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइसेस इज कॉल्ड द होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन यूएसए इट इज referred to as producer price index, ये स्टेटमेंट ठीक है। CPI includes price of good consumed by representative consumer, hence it does include prices of imported goods, it includes prices of imported goods, ये भी ठीक है। टू देखते हैं। Due to COVID-19 lockdown, the capacity utilization in the economy decrease, capital output ratio will increase in the economy, ये स्टेटमेंट ठीक है। Capital output ratio is the amount of capital needed to produce one unit of good, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुआ है, मान लीजिए मशीनरी है उसका यूटिलाइजेशन कम हुआ है, तो अमाउंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ गुड विल इंक्रीज, कैपिटल आउटपुट रेशियो विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, यस, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। 53 देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में क्वेश्चन है। इट एम्स टू सेफगार्ड हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्लीन फ्यूल, तो ये ठीक है। द कनेक्शन विल प्रोवाइडेड टू ओनली बीपीएल फैमिलीज, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको सिर्फ बीपीएल फैमिली तक रखा गया था, लेकिन उसके बाद अदर पुअर्स भी इसमें ऐड किए गए थे, और स्टार्टिंग में सिर्फ सेक डाटा का यूज किया गया था, लेकिन लेटर 7 अदर क्राइटेरियाज आल्सो एडेड टू, गलत हो गया, वन ओनली हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। रीजे मामलिक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, 54 का सी। Moving on to question number 55, which of the above statement regarding Jainism are correct? There are infinite number of souls in the universe, all fundamentally equal. ये सही है। Annihilation of the karma comes out through penance. That's also correct. The world function according to universal law. ये भी ठीक है। The universe function through interaction of living souls and five non-living entities. ये भी ठीक है। So all of them are correct. Read the following statement carefully and choose the correct. Satvahana started the practice of donating land without fiscal and administrative amenities to Brahman and Buddhist monks. The Satvahana started the practice of donating land with fiscal and administrative amenities to Brahman and Buddhist monks. इसमें एक with है, इसमें without है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो वन इज इनकरेक्ट है, तो ये दो गए। डिपेंड ऑन दी फोर ओनली। द गुप्ता डिड नॉट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अलोंग विद लैंड ग्रांट्स, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू 57, which of the following statements are true? If you look at the options 1 and 2, 1 and 2 here, 1 and 2 here also, 1 and 2 here also, so it's all depend on the 3 and 4. The first Factories Act 1881 provided a weekly holiday for all workers. The first Factory Act of 1881 was related to child labor and not for all workers. तो ये statement गलत, ये गलत हो जाएगा। 4 is correct. B is the right. Moving on to 58. He edited Pune Sarvajanik Sabha. He worked with Deccan Education Society founded by Govind Ranade. He was also a member of Indian Public Service Commission. Muhammad Ali Jinnah wanted to be like him. He was Gopal Krishna Gokhale. Moving on to 59. Which of the following were the part of famous treaty signed between Marathas and Mughal in 1719? What is the name of that treaty? Please tell me. I feel that all of them are correct. Moving on to 60. Takavi is a loan. Mukaddam is village headman. Option 60 का A हो जाएगा. Now we will solve the C set. Pointing to a girl in the photograph, Mr. Amar said her mother's brother. यानी गर्ल की बात कर रहा है, गर्ल्स मदर ब्रदर, ठीक है, इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। अमर बोल रहा है माई मदर्स फादर, हर मदर्स ब्रदर इज ओनली सन, ठीक है, तो ये सन है। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर? अगर ये दोनों सेम है तो वो उनकी मदर होंगी, अदरवाइज वो उनकी आंटी होंगी, तो ये यहाँ पे आइदर हो जाएगा, आइदर मदर और आंटी। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। Ruchi went to the bank at the speed of 60 km per hour. While returning from his home, he covered half of the distance at the speed of 10 km. But suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reached the home by covering the rest of the distance at the speed of 30 km per hour. The average speed of Ruhi. इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं होम और बैंक x 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई हैं। आते समय उन्होंने हाफ डिस्टेंस यानी x/2 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई हैं। हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये भी x/2 होगा, ये 30 डिस्टेंस तो आपको पता ही चल गया। टोटल डिस्टेंस यहाँ से जाने में x और वापस आने में x 2x है।
टाइम निकाल रहे हैं अब हम, जब वो अपने होम से बैंक जाती हैं तो वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, एक्स। टाइम और स्पीड कितना है उनका, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो बैंक से होम आती हैं तो वो आधा डिस्टेंस यानी x/2 उसको वो कवर करती हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, और आधा डिस्टेंस वो उसको कवर करती हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। तीनों को जोड़ लो, x/60 प्लस x/20 प्लस x/60। तो टोटल टाइम इसको आप सॉल्व करोगे तो आ गया 5x/60। अब देखो, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x जाने में था, x आने में था डिस्टेंस, ठीक है। और आपका टाइम कितना है, 5x/60। तो ये हो गया 2x/5x, ठीक है, इंटू 60। x से x कट गया, यहाँ पे 12×5 = 60 होता है, तो 12×12 = 24। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको एक डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सबको पता होगा, ये होता है डायरेक्शन, ठीक है। जब हम कॉपी पे लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ये कह रहा है स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ रोड इन द इवनिंग। इवनिंग में सूरज वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है, तो सन यहाँ पे होगा। अगर ये मॉर्निंग रहता तो इधर हो जाता, ईस्ट में, ठीक है। अब जब ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो कभी भी जो इसका शैडो बनेगा, शैडो वो ईस्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ शाम को इसका शैडो बनेगा, और अगर ये मॉर्निंग में रहेगा तो इसका वेस्ट की तरफ शैडो बनेगा। बस इतना चीज अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को इजीली। किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो अब देखो ये कह रहा है कि टॉकिंग इन द इवनिंग। इवनिंग में बात कर रहे हैं, वेस्ट यानी सन यहाँ पे होगा, ठीक है। और वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेट्स से ये रवि है और ये मोहित है। As they walk toward their houses with their back towards each other, Ravi's shadow is exactly to his left. यहाँ पे exactly to his left, अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो अगर लेफ्ट में है यानी वो कह रहा है रवि शैडो इधर है लेफ्ट में, लेकिन ये कंडीशन हो नहीं सकती है क्योंकि शाम हो रही है। रवि के लेफ्ट में उसका शैडो नहीं आ सकता है ना, तो यानी कि रवि यहाँ पे नहीं है। अब इसको इंटरचेंज करके देख, अब मान लो मोहित यहाँ पे और रवि यहाँ पे है, ठीक है। अब देख लो, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ठीक है। अब ये रवि इस साइड की तरफ जा रहा है और इसका शैडो जो है लेफ्ट की तरफ है, तो शैडो इसकी इधर बनेगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, यहाँ पे है। देन विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, तो वो हो जाएगा नॉर्थ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। 5% ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट 4.5 लाख। यहाँ से टोटल इंडियन टूरिस्ट निकालते हैं। 5% इतना है, तो अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इंडियन टूरिस्ट निकल जाएगा। सो 20 इंटू 4.5 लाख। अब पूछा गया है कि 30 to 40 रेंज में कितने इंडियन टूरिस्ट हैं, ठीक है। 15% ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट, तो टोटल इंडियन टूरिस्ट आपने इतना निकाल लिया। अब इसका 15% निकालो, 15% ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट। सो 20 इंटू 4.5 इंटू 15% से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13.5 लाख, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था टोटल इंडियन टूरिस्ट इज इक्वल टू 20 इंटू 4.5 लाख, ठीक है। ये डेटा हमारा पिछले क्वेश्चन में से लिया गया है। नाउ फ्रॉम पाई चार्ट इट इज गिवन दैट 1/5 ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट गोज टू यूरोप और यूके। सो इंडियन टूरिस्ट टू यूरोप एंड यूके 1/5, ये पाई चार्ट में दिया है, 1/5 ऑफ 20 इंटू 4.5 लाख, तो ये हो जाएगा 18 लाख। अब इसी क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूरोप इज एटलीस्ट 3 टाइम द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूके। इसका मतलब हुआ यूरोप इज इक्वल टू 3 यूके। यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम यूरोप और यूके जाने वाले टूरिस्ट को ऐड करें तो वो 18 लाख होने चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पे डालो, 3 यूके प्लस यूके इज इक्वल टू 18 लाख, तो यहाँ पे यूके 4.5। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट टू यूके इज 4,50,000। तो जेएनयू 3 डिजिट का है, ये 12 डिजिट है, यानी एक डिजिट को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जे को रिप्रेजेंट किया गया है इससे, ठीक है। इसी तरह यू को रिप्रेजेंट किया गया है लास्ट 4 से। अब यहाँ पे देखिए, तो पी का 4 डिजिट आप छोड़ दीजिए, उसके बाद 4 डिजिट जो होगा वो मैच करना चाहिए इस लास्ट वाले से, तो वो मैच कर रहा है। 4 आप छोड़ दो पी के लिए, उसके बाद 21061 ये मैच कर रहा है यू से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1970। सेम कैलेंडर होने के लिए ना
दो चीज मैच करना चाहिए, एक फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट डे मैच करना चाहिए, एंड सेकंड इज टाइप ऑफ ईयर, लीप ईयर है या जनरल ईयर है। 1970 को आप चेक करो ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो तो पता चला है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है। जब भी आपका ऑर्डिनरी ईयर आए तो तो आपको क्या करना है, +11 कर देना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है, +11। तो 1970 में हम +11 करके देखते हैं तो 1981 इसका आंसर होगा। लेकिन +11 ऐड करके आपको ये भी देखना है 1981 जो आने वाला है वो लीप है या जर्नल है। जर्नल टू जर्नल मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लीप आ जाता है, अगर ये लीप हो जाता, ठीक है, तो हम ऐड करते या 6 की 11 की जगह सिर्फ +6 कर देते। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 1989 का ईयर ले लो आप, देखा कि ये लीप ईयर नहीं है, 11 ऐड कर दिया, 11 ऐड करने के बाद ये हो गया 2000। तो ये जो है यहाँ पे ये तो जनरल ईयर था और यहाँ पे ये है लीप ईयर बन गया। तो इस समय यहाँ पे ऐड 11 ना करके हमें सिर्फ 6 ऐड करना है। तो उन यहाँ पे हो जाएगा 1995, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा मैंने आपको एडिशनल बता दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ यहाँ पे दिया हुआ है ए रेशियो बी, कितना दिया हुआ है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:3। ये इनकम है और इधर एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। इधर एक्सपेंडिचर है ए, ये ना यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखो, एक साइड आप इनकम लिख लो और इधर लिख लो एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनकम में ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:3। एक्सपेंडिचर में ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है 5:8:2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सी स्पेंड्स ₹2000। तो इसको हमें 2000 करना है क्योंकि ये सी का शेयर है। तो हम 2000 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से सबसे गुना कर, 1000 को सबको 1000 से गुना कर देते हैं तो 5000, 8000 और यहाँ पे हो गए 2000। तो अब यहाँ पे हमें सी का एक्सपेंडिचर 2000 हो गया, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ए और बी का एक्सपेंडिचर होगा वो 5000 और 8000 होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम इधर इनकम की तरफ देखते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम तो यही होता है ना, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अब यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है कि सी बी सेव 700। तो बी ने सेविंग किया है 700, ठीक है। और बी ये और बी का एक्सपेंडिचर है 8000, ठीक है। तो बी का इनकम हो गया 8700। अब यहाँ पे हम 8700 हमें बी का, ये हमें पता है कि ये जो यहाँ पे इनकम है, ठीक है। तो 8700 हमें इसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8700 हमें बी का इनकम करना है। तो यहाँ पे हम इसको भी 5 को गुना कर देते हैं 2009 से और 3 को भी गुना करते हैं 2009 से। तो ये हो जाएगा 0,0,8,700, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए का इनकम है 14,500, ठीक है, 14,500 इनकम है और यहाँ एक्सपेंडिचर है उसका 5,000, ठीक है। तो 9,500 उसकी सेविंग हुई, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑप्शन 9,500 नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन को हो जाएगा, ये क्वेश्चन है गलत। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, यहाँ पे 8:5:2 रहता ना, तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन सही हो जाता, उसका आंसर हो जाता ए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ये। इसका आंसर होना चाहिए था 9,500 इस क्वेश्चन के हिसाब से। 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted। करेक्ट के लिए 5 और इनकरेक्ट के लिए है -2। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन x मान लिया,
तो करेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है, 90 माइनस एक्स को आपको गुना करना है कितने से, 5 से, प्लस, और x को आपको गुना करना है कितने से, -2 से, और वो हो रही है 87। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 63/7, तो हो जाएगा 9। इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे। मूविंग ऑन टू 10th। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर और कैसे होगा। ठीक है, that's it in this paper. Also, if you want me to solve JMI or AMU or any entrance exam paper, please tell me in the comment. I will do that whenever I am free. Thank you. Thank you for listening. Have a nice day.